हेलो गाइस, दिस इज़ कुमार मनीष। अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो एन पैटर्न की 11th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 6 है। हालांकि यह ऐसा टॉपिक है जो इतना मान के चलें कि यह टॉपिक हर जगह काम आने वाली है, चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन हों या हायर स्टडी हो, बीटेक, बीएससी और एन अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हर जगह यह बेसिक है। इस बेसिक को यदि आप अभी क्लियर कर लेते हैं, आई गारंटी यू कि आपको कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। हालांकि इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी एंड पावर बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक वीडियो का सेगमेंट कई पार्ट में हो सकता है। आज पहले सेगमेंट में हमने पहले टॉपिक को कवर किया है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र देख लेते हैं इस पर। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, work, kinetic energy, work done by a variable force, the kinetic energy theorem for a variable force, the concept of potential energy, the conservation of mechanical energy, the potential energy of spring, various form of energy, the law of conservation of energy, power, and last is collision. And now this is me. My name is Kumar Manish, BTech from Madan Mohan Malvi University of Technology, Mechanical Engineering, and I have done also Diploma in Mechanical Engineering Production from Government Polytechnic, Ghaziabad. So let us start the scalar product. This is our first topic in physics. First we have to know quantity, and it is derived into two forms: scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity which has magnitude and no direction, which has magnitude and no direction is called scalar quantity, while vector quantity has magnitude plus direction. Magnitude plus direction, which quantity is known as the vector quantity. And now come to the point: vector operations, addition, subtraction, these two operations as usual operation you can perform, but in multiplication, which is also called product, and it is also derived in the two form: dot product and cross product. Dot product is also known as the scalar product, while cross product is known as the vector product. And now you have to understand about what is the scalar product and vector product. Scalar product is that scalar product gives a scalar form. Now scalar product gives a scalar form, scalar from two vectors, while vector product produces a new vector from two vectors, and it is represented by E cross B, while scalar product is represented by E dot B. Now next point is that how you define it. How will you define it? A dot B is defined as the A dot B equal to EB cos theta. Cos theta, where theta is the angle between the two vectors, which is seen in the figure. Since A, B and cos theta are scalars, the dot product of E and B is a scalar quantity. Each vector E and B has a direction, but their scalar product does not have a direction. Mind it, A and B has a direction which is shown in the figure, but their scalar product
does not have a direction. How will you understand? Now come to the next point. E dot B equal to E B cos theta, you can write, or B A cos theta. Geometrically, B cos theta is projection of B onto A, which is shown in the figure B 6.1b, and E cos theta is projection of E onto B, figure 6.1c, which is shown in the just below of B. It is the product of magnitude of B and the component of E along B. आप इसको कैसे समझेंगे? आपके बगल में एक और फिगर है, ज़रा इस पे गौर फरमाइए। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बिल्डिंग में एक छज्जा टाइप से बाहर निकाला हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अब ज़रा विंडो पे ध्यान दीजिए, विंडो पे इसका प्रोजेक्शन लाइट, जो सनलाइट है इसका प्रोजेक्शन विंडो पे पड़ रहा है, यही तो प्रोजेक्शन है। अब इसी प्रोजेक्शन को आपको लाइन पे इमेजिन करना है। यहाँ पे लाइट के थ्रू एक पिक्चर जो पिक्चराइज किया गया है, इसे आप समझ सकते हैं। हम पहले पिक्चर की बात करते हैं, ABC, जो ऊपर से लाइट दिखाया जा रहा है और AC का प्रोजेक्शन बन रहा है AB लाइन पे। तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है AC, जब उसी लेंथ को AB पर मेज़र करेंगे तो वह एक्चुअल लेंथ AB पर मेज़र्ड नहीं होंगी, उससे हमेशा कम आएंगी। वह कैसे मेजर्ड होती हैं, ये वेक्टर के थ्रू हमें पता चलता है। जैसे AC को हम AB पर जब मेज़र करेंगे तो C का प्रोजेक्शन B पर आएगा C डैश, तो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा AC डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा AC cos थीटा होगा। उसी तरह से AB का प्रोजेक्शन हम यदि AC पर देखें तो AB cos थीटा होगा AB डैश के बराबर। सेम चीज़ वही बताया गया है इन पिक्चर्स पे। अब पिक्चर 6.1 का B पे ध्यान देते हैं। ये जो वेक्टर को दिखाया गया A, यह मैग्नीट्यूड है, B मैग्नीट्यूड है। अब B का प्रोजेक्शन A पर देखेंगे तो B cos थीटा आएगा, और A का B पर देखेंगे तो E cos थीटा B पर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं कि जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो यही वेक्टर फॉर्म को आपको हर जगह अप्लाई करने हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे रिजोल्यूशंस आते हैं वेक्टर के। ये वेक्टर रिजोल्यूशंस, इन्हीं वेक्टर्स को ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड का ये प्रोजेक्शन इस लाइन पे जा रहा है, वहाँ पर हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अभी जो आप पढ़ रहे हैं कि B cos थीटा, E cos थीटा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वही यदि जो एंगल है, एंगल के जस्ट सामने की बात करें हम यदि, ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाली लेंथ की बात करें तो B sin थीटा हो जाएगा वहीं पे। ये जो B sin थीटा जो आएगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर चलते हैं इस फिगर पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन आया है ऊपर से, आधे विंडो पे पूरी लाइट जा रही है और आधे विंडो छाए में है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि यदि उस छज्जे के साथ साथ विंडो पे भी कुछ लेंथ के जो विंडो की रूफिंग की जाती है, इसीलिए रूफिंग की जाती है, इस तरह से खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसमें रीज़न नहीं होता। अभी आप इस स्टैंडर्ड पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, आगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सनलाइट जा रही हैं, यह सनलाइट जब रूम में जाएंगी तो यह बाहर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, इनसाइड का टेम्परेचर भी इक्वल कर लेगा और रूम हमेशा गर्म होगा। और जब रूम गर्म होगा तो ह्यूमन कंफर्ट के जोन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ध्यान में देखते हुए पढ़ाई कीजिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है,
हम उसे दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसे दैनिक जीवन में कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ये सारी चीज़ों अभी जो आप पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, वही सारी जगह पे अप्लीकेबल होनी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे एन के, ये एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जो रूल होता है आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे एंड के डॉट के, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वह 1 होती है। वहीं पे यदि आई का जे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जे का के से, के का आई से, एक सर्किल में हो जाए, आई का जे का के का आई से, तो वह डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो निकल के आता है वह होता है 0। अब वो कैसे होगा भाई, 0 कैसे हो गया? तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के जो लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? आई यूनिट वेक्टर है। अब यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो ए एक्स आई लिखा हुआ है, एक्स का मतलब है एक्सिस, ए का मतलब है जो वेक्टर है, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है। मतलब कि कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ए वाई जे वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, उसी दौरान वह जेड एक्सिस से भी कितनी दूरी पे है। सेम टाइम बी की बात कर लें, सिमिलरली बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू कुछ और आएगा, वहाँ पे जो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो वह स्केलर क्वांटिटी देगा, लेकिन यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में यह जो क्वांटिटी निकल के आएगी वह भी स्केलर होगी। इसमें मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट। ए एक्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई का आई से मल्टीप्लिकेशन होगा, जे का जे से और के का के से। अब ज़रा रूल में देख लीजिए यूनिट वेक्टर के, आई आई जे जे और के इसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली यहाँ पे जब ए एक्स बी एक्स आई आई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ई वाई बी वाई जे जे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जे जे के ए जेड बी जेड के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वहाँ पे जो यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर गायब हो गया है। अब आपके साथ में वेक्टर नहीं है। जो वहाँ पे पहले दिख रहा था ई एक्स आई ई वाई जे ए जेड के, यहाँ पे वेक्टर था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकल के आया ए डॉट बी का, तो भी वहाँ से वेक्टर गायब हो गया बाय रूल्स एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन से हम देखते हैं तो ए डॉट ए, ठीक है, मतलब कि खुद ही से मल्टीप्लाई, ठीक है, वो भी स्केलर में। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट को ध्यान में देंगे तो ए का ए से कर रहे हैं, मतलब एक्स का एक्स से कर रहे हैं, वाई का वाई से कर रहे हैं, जेड का जेड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, जहाँ पे ए डॉट ए की का मतलब होता है मॉड ए कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है वह 0 है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो मॉड ए की वैल्यू भी आएगी ए और मॉड ए की भी वैल्यू आएगी ए, और जब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यदि ये उस कंडीशन में है जब वो पैरेलल है, यदि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए यानी कि साइन कॉस 90 डिग्री, जहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसी के साथ साथ हम एक एग्जांपल में चलते हैं जो आपके बुक में ही दिया हुआ है। वह एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स
एफ की वैल्यू दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस 3k, वेक्टर यूनिट के साथ में है, यूनिट वेक्टर के साथ में है। एंड डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू 5i प्लस 4g प्लस 3k यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, मतलब कि f का प्रोजेक्शन d पर फाइंड करना है। मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे फिगर 6.1 का बी में देखिए कि b का a पर प्रोजेक्शन आया है b cos थीटा। सिमिलरली b को f मान लीजिए, a को d मान लीजिए, तो d पर कह रहा है b का प्रोजेक्शन बताइए, तो सिंपल सी है बॉस, f cos थीटा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट है। अब जब स्केलर प्रोडक्ट है तो f डॉट d होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, जो अभी हमने डेरिवेशन में देखा था। तो एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे जो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है एफ एक्स का 3 है। एफ वाई की बात करेंगे 4 है। एफ जेड की बात करेंगे -3 है। वहीं पे डी एक्स की बात करें तो 5 है, डी वाई की बात करें तो 4 है और डी जेड की वैल्यू 3 है। इसकी जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है 16 यूनिट। एंड हेंस एफ डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, मतलब कि जो एफ डॉट डी की वैल्यू 16 यूनिट आई है वह बाय फार्मूला एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू 16 यूनिट। नाउ एफ डॉट एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर, एफ डॉट ए मतलब कि मॉड एफ इंटू मॉड एफ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर। सिमिलरली डी के लिए बात करेंगे तो डी के लिए भी यही होगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल गया था कास थीटा बराबर, तो कास थीटा को यहाँ से थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम हो भी रहा होगा तो हम थोड़ा सा रूल में भी देख लेते हैं। रूल में ये है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ए डॉट बी बटे मॉड ए डॉट मॉड बी। ठीक है, जो मॉड ए मॉड एफ और मॉड डी की जो वैल्यू हमने निकाला एफ स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है, अब हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे 16/√50 इंटू √50, जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 0.32। अब जब थीटा की वैल्यू, मेनली थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो जब थीटा की वैल्यू कॉस को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो वह इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 0.32। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी इस सेगमेंट के बहुत ढेर सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक एक करके बारी बारी से सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।